शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। एज यूजुअल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और इसका ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट। दिस इज लेक्चर नंबर 6, छठा लेक्चर है ये। और कितनी सारी चीजें है ना, अप टू द मैक्स हमने कितनी सारी चीजें सीखी इसमें। प्रीवियस लेक्चर भी बहुत मजेदार था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह या फिर और सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, सो दिस कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेई नीट एंड एमयू ट्रिपल ई एग्जामिनेशन। ठीक है। Now, before moving to our main content, I would like to introduce myself. Myself, Shubham Kumar Upadhyay. I'm an engineering student. I'm pursuing BTech from IIT Lucknow, as well as I'm a JEE qualified candidate and also listed as a MUEE chemistry educator for one and only STBG Academy. ठीक है, जो मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते दिस इज माय इंट्रोडक्शन। आगे बढ़े। देखो ये सारी चीज़ें आप लोग की क्लासेस में डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, वी ऑल हैव डिस्कस in our previous classes. Now let's move on to our main topic जो आज हमको पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने सब कुछ पढ़ लिया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, दिस इज important, this is an important section as we have discussed previously in our next class about photoelectric effect, and as well as uh, I have studied। हाँ, नहीं रख दो ना, अरे उसको नीचे रख दो, वही छोड़ दो, वही छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, ठीक। सॉरी गाइस, एक बार फिर से बताओ, आवाज आ रही है मेरी? सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, आवाज आ रही है? चलिए। So as far we have studied in previous class about the role and function of battery as well as आगे बढ़ा था और हमने पढ़ा था ये सारे की पॉइंट, है ना। और साथ ही साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह का डिस्कशन किया था कंप्लीट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जब भी क्या होता है, लाइट जो है वो मिडल के सरफेस से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, वो भागते हैं टुवर्ड डिटेक्टर। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी को यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए रिवर्स में जितना पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना। ठीक है, चलिए। ग्राफ वगैरह भी हमने देख लिया था और लास्ट में मैंने क्या, इंटेंसिटी और फोटो करंट, ठीक है, ये भी कराया था। We have studied this so far, that intensity is basically energy per unit area per unit time. If we talk about the intensity of a photon, then for a single photon, the incident energy can be written as EI, as I've denoted the incident energy with EI. So, for a single photon, the incident energy EI will be given as h nu I, where nu is basically the frequency, that is incident frequency. So if I replace the term EI with h nu I, then I'll get the value for the single photon. The intensity will be equals to h nu I upon A into T, where A refers to area and T refers to time. Now if we talk about for the whole light rays, then as we have know that a light rays contain n number of photons, then we basically multiply the right hand side with n, then we'll get the whole energy of the light ray, and the incident energy will be written as nh nu I. So if we replace the term incident energy with nh nu I and divided by A multiplied by T, where A refers to area, then we can find out the intensity of the light rays. So basically we have discussed this in our previous classes. Now if we talk about the photo current, then as we know that it's very simple. An electrocurrent is given by Q by T, where Q refers to N into T, N into E. This is basically the quantization conditions of an electric charge. Now if I replace the term Q with N into E, then the photocurrent will be equals to I will be equals to N into E upon T, where N refers to number of electron. Okay, so now today we have to discuss our next term, that is black body radiations. Now I'd like to know that have you referred this term before, black
body radiation. Let's move on to next chat section. क्या किसी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन सुना है? पहले बिल्कुल सुना होगा। 16 लोग हैं यार, आज तो क्लास बड़ा एंगेजमेंट बड़ा अच्छा है, आज तो थोड़ी एनर्जी को बढ़ानी पड़ेगी, है ना? ना ना क्लास करते हैं, चलो चलो। बताओ क्या किसी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन सुना है? चलिए, अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन सुना है तो आइए वापस आते हैं अपने वापस वाले लैंग्वेज में। मजा नहीं आ रहा है इंग्लिश में, है ना? हिंदी में पढ़ते हैं आओ। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। देखो एक सिंपल सा डायग्राम तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ एक डायग्राम है ना? अभी डायग्राम पे पहले आएंगे बट समझते हैं थोड़ा। देखो ऐसा नहीं है ना, ये मिस जरूर मत रखना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब कि वो बॉडी ही काली होगी। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हर काली बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती है, ठीक है? बेसिकली पहले तो समझो कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, फिर समझेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है ना? अच्छा, कितनों को पता है ब्लैक बॉडी क्या है? सिंपल से, ज्यादा बस थोड़ा सा टर्म है, ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, ये ठीक है? बस ये इंक्लूडेड होता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है थ्योरेटिकली, तो मैं ये चीज तुम लोगों को करा दे रहा हूँ, ठीक है? देखो ब्लैक बॉडी क्या होता है, ठीक है? ब्लैक बॉडी होता है बेसिकली ऐसी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट जो कि उस पे पड़ने वाले सभी प्रकार के रेडिएशंस को, जैसे अगर तुम लाइट डालते हो तो वो लाइट को अपने अंदर पूरा का पूरा ऑब्जॉर्व करेगा बिना किसी रिफ्लेक्शन के, स्कैटरिंग के या ट्रांसमिशन के। मतलब कि एक लाइट अगर तुम डाले उस बॉडी पे तो पूरा का पूरा ऑब्जॉर्व कर लेगा, ना ही वो ट्रांसमिट करेगा, ना ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, ना ही वो स्कैटर करेगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी जो कंप्लीट लाइट को या फिर इंसिडेंट एनर्जी को, उसको कह लो, ठीक है, किसी भी तरह के इंसिडेंट रेडिएशंस को क्या करे, ऑब्जॉर्व कर ले कंप्लीटली, उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जो रेडिएशन होगी उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। मतलब अगर ब्लैक बॉडी समझ लिया जाए तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस अपने आप समझ आ जाएंगी, है कि नहीं? ठीक है। सो इसको लिख लो कि अ बॉडी या फिर एन ऑब्जेक्ट, एन मैं ऑब्जेक्ट लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है? सो एन ऑब्जेक्ट विच कैन absorb all the incident radiations, नोटेड, मैं सिर्फ लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हर टाइप की रेडिएशंस को क्या करे, अगर ऑब्जॉर्व कर लेता है। सो कंडीशन यही है कि वो हर टाइप के रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर ले। ऐसा नहीं है सिर्फ कि सिर्फ लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, बट सिंपली हम लाइट के लिए, इस लाइट का अभी तक हम रेफरेंस लाइट के बारे में सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं। सो मैं बस यहाँ ये लिखूंगा सिंपल डेफिनेशन के लिए कि एन ऑब्जेक्ट या फिर ए बॉडी विच कैन ऑब्जॉर्व ऑल द इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है? बेसिकली लाइट भी है उसमें, ठीक है? सो उसको ब्लैक बॉडी क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जो रेडिएशंस होगी उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे, ठीक है? अब इसमें वही चीज मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ एक बॉडी तुमको दिख रही है, ठीक? अब देखो इस बॉडी के अंदर हमने क्या कराया, इस फिगर में थोड़ा ध्यान दो कि एक स्मॉल होल ये दिख रहा है ना? इसको चाहो तो आप होल कह लो या स्लिट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके थ्रू लाइट एंटर की, जैसे ही इसके थ्रू लाइट एंटर की, सो यहाँ देखो इसको बोलते हैं, ये एक रिफ्लेक्टर लगा है, ये एक रिफ्लेक्टर है। सो जैसे ही लाइट इंटर करेगी ये क्या करेगा, किसी ना किसी एंगल पे गिरेगी और वो रिफ्लेक्ट होके फिर इस पॉइंट पे टकराएगी। फिर जो ही इस पॉइंट पे टकराएगी फिर ये नीचे वाले पॉइंट पे टकराएगी। ऐसे ही लाइट इसी के अंदर टकराते रह जाती है, वो लाइट कभी स्केप नहीं हो पाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। समझ रहे हो? और जब वो लाइट बाहर नहीं जा पाएगी तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही लाइट ये छोटे से जगह से, बहुत छोटा सा छेद है, इस छोटे से जगह से जैसे ही लाइट एंटर की अंदर, वो सारी की सारी रेडिएशन को क्या किया, अब्जॉर्ब कर लिया। भाई होता क्या है कि जैसे ही लाइट एंटर की ना, तो जब वो टकराती है ना तो वो अपनी एनर्जी को क्या करती है, लूज करते जाती है ना? तो जैसे ही वो यहाँ टकराएगी वो कुछ एनर्जी लूज करेगी और वो फिर इस पॉइंट पहुंचेगी, फिर वो यहाँ टकरा के फिर इस पॉइंट पहुंचेगी, फिर ऐसे ही टकराते टकराते वो लाइट एनर्जी अंदर ही टकराते रह जाती है, रिफ्लेक्ट करते करते हर पोजीशंस पे। और एक ना एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम उसकी सारी एनर्जी जो है वो जिस पॉइंट, जिस जैसे इस पॉइंट पे टकरा रही है तो ये पॉइंट कुछ ना कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे टकरा रही है तो ये पॉइंट भी उसके कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा। सेम चीज इसके साथ होगी। सो ऐसे ही मल्टीपल्स, जब अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल्स रिफ्लेक्शंस होते हैं उस बॉडी के अंदर। सो उसकी जो लाइट, उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या करता है, सरफेस ऑब्जॉर्ब करते जाता है। और ऑब्जॉर्ब करते करते एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम लाइट जो है वो कभी स्केप नहीं कर पाती है उस होल से, मतलब लाइट डाले तो वो अंदर ही रह जाएगी।
इसीलिए हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा रेडिएशंस जो कि क्या करे, ऑब्जॉर्ब किए किए जाए किसके द्वारा, ब्लैक बॉडी के द्वारा, उसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी क्या है, एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर प्रकार के रेडिएशंस को, मैं एग्जांपल के लाइट लिया हूं लेकिन वो हर प्रकार के रेडिएशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल ऐसे ही। समझ आया? तो ये जो फिगर है ये समझ आ गया होगा अभी। लैग, अरे यार, नहीं तो होना चाहिए, नेटवर्क तो ठीक है यार। रिपीट, अरे फिर से लैग हो रहा है क्या? लैग तो नहीं होना चाहिए यार। कल्लू त्यागी, इसमें कुछ रिपीट करने वाला है नहीं यार। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हूँ, वो डेफिनेशन भी ढंग से पढ़ लोगे ना तो समझ आ जाएगा, और वो डायग्राम देख लोगे तो भी समझ आ जाएगा। डेफिनेशन में सिंपली ये लिखा हूँ कि एक ऐसी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, स्लैश करके लिखा हूँ ना, जो कि क्या करे, उस पे पड़ने वाले कोई भी रेडिएशंस को, इंसिडेंट रेडिएशन मतलब उस पे पड़ने वाले जो भी रेडिएशंस होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइट गिरा रहा हूँ तो लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ रहे हो? बस वही चीज को मैंने यहाँ एक फिगर के थ्रू बनाया कि एक बॉडी यहाँ बनाई है मैंने, और एक छोटा सा छेद छोड़ दिया है, स्मॉल होल लिखा है, स्मॉल होल। तो इसके अंदर से मैंने क्या करा दी, लाइट को एंटर करा दी। अब ये लाइट जो है वो अंदर रिफ्लेक्शन करते करते इतने मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते रह जाएगा कि वो उस होल से बाहर कभी आ ही नहीं पाएगा, है ना? जैसे ही लाइट घुसी, इस पॉइंट पे टकरा के रिफ्लेक्शन करेगा, फिर इस पॉइंट पे टकरा के रिफ्लेक्शन करेगा, फिर इस वाले पॉइंट पे टकरा के रिफ्लेक्शन करेगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन करेगा। सो ऐसे करते करते जितने टाइम वो टकराता है उतने टाइम टकराते टकराते वो सरफेस जो है वो क्या करते जाते हैं, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर जाता है, थोड़ा 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 करके। अब ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, और हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कुछ ना कुछ जो रेडिएशन होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा। और ऐसे ये लाइट अंदर ही रिफ्लेक्शन करते रह जाएगी और वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो हम ये कहेंगे कि जो बॉडी है वो उस लाइट को खा गई का इन द सेंस कि ऑब्जॉर्ब कर ली पूरी की पूरी। तो ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं, और उस रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अभी क्लियर है? हम्म, अभी क्लियर है? चलो अभी तो क्लियर होगा। अब ब्लैक बॉडी में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, देखो, एक ये वाला डायग्राम, इसको इसको बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। वीन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, बहुत सिंपल सा टर्म है। देखो डायग्राम देख के या ग्राफ देख के, बस इस ग्राफ को कभी अगर याद हो पाए तो याद कर लेना। याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस नेचर समझ लो कि ग्राफ का नेचर क्या है, समझ आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत बस इंपॉर्टेंट है, इसको देख चेक कर लो, बस एक ही चीज तुमको इसको देखने को मिलेगी, क्या है? और मैं तुमको पहले विजुलाइज, पहले लिख देता हूँ फिर विजुलाइज करा देता हूँ। इस चीज में एक ही तुमको याद रखनी है कि जो टेम्परेचर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। किसी भी बॉडी के लिए अगर मैं कहूँ, मतलब ब्लैक बॉडी के लिए है, ठीक है, किसी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो टेम्परेचर और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। अब ये जो काम था, मतलब ये जो बातें थी, ये किसने दी थी? ये वीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? तो अभी तुमको कोई भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्या था, कैसा था, क्या लॉजिक है, कुछ नहीं, बस अभी ये समझ लो कि वीन नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ब्लैक बॉडी पे जब रिसर्च किया तो हमको एक बात बताई, क्या बताई? कि जो टेम्परेचर होता है जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ये किसने दिया? वीन ने, वीन नाम के साइंटिस्ट, WIEN। इसीलिए इसको वीन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम या वीन डिस्प्लेसमेंट कर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम या वीन डिस्प्लेसमेंट कर्व। अच्छा, वीन डिस्प्लेसमेंट कर्व दिखाता क्या है? वो दिखाता ये है कि जो टेम्परेचर होगा ब्लैक बॉडी का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वेवलेंथ के। क्या होगा? जो टेम्परेचर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वेवलेंथ के। समझ आया? यही है वीन डिस्प्लेसमेंट कर्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चीज को ऐसे समझो, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, लिख लो, इसको यहां लिखवा देता हूं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी द वेवलेंथ डिक्रीजेज। वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक आयरन रॉड की अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। एक आयरन रॉड लिया मैं, ठीक है, सबने देखा भी होगा इस चीज को या फिर ऑब्जर्व भी किया होगा। क्या? ऐसे अगर आयरन को तुम जब हीट करते हो,
सो वो पहले कैसा होता है, लाल कलर का होता है, सबने देखा है, जब एकदम एक्सट्रीम हीट करते हो तो एकदम रेड कलर का हो जाता है, होता है, ठीक है। और फिर जैसे तुम उसको छोड़ देते हो, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, इनिशियली वो क्या करता है, जैसे शुरुआत में रेड है, ठीक है, अब तुम और लगातार उसको बढ़ाते गए टेम्परेचर को, तो अगर किसी ने इस चीज को नोटिस किया होगा या देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो शुरुआत में इनिशियली वो रेड रहता है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे जैसे और इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाता है तुम्हारा रेड से येलो, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा और बढ़ाओगे तो ब्लूइश ग्रीन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो एक आयरन रॉड भी शुरुआत में टेम्परेचर जब शुरुआत में जब इनिशियली जब तुम हॉट रखते हो उसको, तो रेड रहता है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिर वो हल्का हल्का रेडिश से येलो शिफ्ट होता है, फिर येलोविश से किधर हल्का हल्का ब्लू, और फिर एट दी एंड जब बहुत ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर कर दोगे तो वो ग्रीन हो जाता है। तो समझ रहे हो, जैसे तुम टेम्परेचर को बदल रहे हो तो तुम्हारा कलर जो है वो आयरन रॉड का बदलते जाता है। अगर किसी ने नोटिस किया और देखा होगा तो ये चीज तुम नोट कर सकते हो। क्या किसी ने देखा ये चीज, लोहार वहार के कभी ऐसा गए होगे तो देखे होगे, है ना, ठीक है। अरे तो कितनी बार बोलूं मैं, तुमने बोला है कि लाइट अंदर रहेगी, अब्जॉर्ब के बाद लाइट खत्म हो जाएगी, तो मैंने बोला तो है कि हर सरफेस जो है वो थोड़ी थोड़ी जितनी बार रिफ्लेक्शंस होता है वो हर सरफेस ऑब्जॉर्ब करते जाता है। येलो तक देखा है, हाँ देखा है, येलो तक देखा होगा, मतलब देखा है ना कलर बदलते हुए। सो मेरा बस लॉजिक समझाने का यही है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, कलर बदलता है। और कलर किससे एसोसिएटेड होता है भाई, कलर उसकी वेवलेंथ की प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड होता है। जिनको नहीं पता है वेवलेंथ, बेसिकली किसी भी बॉडी का वेवलेंथ हम कैसे देखते हैं, उसके कलर से। तो कलर बेसिकली का मतलब उसका वेवलेंथ। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ बदल रहा है ना। और रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन होता है, हमेशा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, बोलो बोलो, टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे वेवलेंथ घटेगा। तो ये बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को घटाते जाऊं तो वेवलेंथ बढ़ेगा क्या, बताओ। अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊं तो वेवलेंथ बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो वेवलेंथ घटना चाहिए, बोलो, घटना चाहिए, बिल्कुल घटना चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाते जाता हूं तो वेवलेंथ अपने आप घटेगा ना। अब यही चीज जरा इस ग्राफ में नोटिस करो। ग्राफ में नोटिस करने वाली बात यह है कि जब 3000 था केल्विन, यहां देखो, जब 3000 केल्विन था, तो इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट कुछ यहां आ रहा है, आ रहा है, देखो, इस ग्राफ का पीक पॉइंट कुछ यहां आ रहा है, आ रहा है, बोलो बोलो, इस ग्राफ का पीक पॉइंट कुछ यहां आ रहा है। अब जैसे तुम टेम्परेचर 4000 ले गए, अब इसका पीक पॉइंट देखो कुछ यहां शिफ्ट हो गया। सिमिलरली जैसे तुम बॉडी का टेम्परेचर 5000 ले गए, देखो इसका पीक पॉइंट और पीछे शिफ्ट हो गया। और जैसे तुमने 6000 लिया, इसका पीक और पीछे हो गया। अब इस साइड तो वेवलेंथ है, लेमडा है, और इस साइड क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर। तो तुम टेम्परेचर कंटिन्यूस बढ़ा रहे हो ना, तुम 3000 से कहां जा रहे हो, 4000, फिर कहां जा रहे हो, 5000, फिर जा रहे हो 6000। तो खुद देखो ना कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये ग्राफ का जो पीक है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दिख रहा है। अरे भाई यहाँ पीक देखोगे तो यहाँ 10,000 से 12,000 के बीच में है, फिर पीक देखोगे तो 6,000 से 8,000 के बीच में आ गया, फिर पीक देखोगे तो 6,000 पे आ गया, फिर पीक देखोगे तो 4,000 से 6,000 के बीच में आ गया। इट मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये जो ग्राफ है, इसका जो मैक्सिमम कर्व है, मैक्सिमम पॉइंट है, वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब देख के क्या लग रहा है ग्राफ में कि सर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब घट रहा है। इट मीन्स ये जो ग्राफ है ये इस रिलेशन को सही साबित करता है। जो टेम्परेचर होगा, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं इसको, बट अभी समझ लो टेम्परेचर ही, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होगा वो बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड होगा वेवलेंथ ऑफ द बॉडी की। बताओ क्या ये ग्राफ से क्लियर है, देख के पता लग रहा है, ओके ओके ओके, नहीं लिखेंगे, ठीक है ठीक है, ओके ओके, क्लियर है देख के, क्लियर है, चलिए चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना, जल्दी बता दो। सबको क्लियर है, जितने भी क्लास में है सब बताओ, सबको क्लियर है ना, ठीक है। सब लोग चैट सेशन में रिस्पॉन्स दे दो यार, जितने भी नए बच्चे भी आए और जो पुराने भी हैं, ठीक है।
देख के समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो बेसिकली ये था हमारा ओवरऑल कहानी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। ठीक है, ये थी हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कहानी। ठीक, अब पार्टिकल नेचर होता है समाप्त। जी हाँ, पार्टिकल नेचर और ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने लगाया है, इस चीज को आप थोड़ा बदल लीजिए क्योंकि अब ये हो गया है समाप्त। ठीक है, तब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली या फिर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तक की कहानी थी उसकी हो चुकी है समाप्ति। जी हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और याद करो कहाँ छोड़ा था हमने। याद करो, एटॉमिक मॉडल में एक लास्ट मॉडल बचा था, याद करो, बोहर मॉडल। तो अब शुरुआत करेंगे हम वो लास्ट एटॉमिक मॉडल जो हमारा छूटा हुआ था, वो था बोहर एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के बाद हमने एटॉमिक मॉडल की क्या कर दी थी। रदरफोर्ड के बाद हमने लास्ट टाइम एटॉमिक मॉडल कब पढ़ा था, रदरफोर्ड वाला, याद है। उसके बाद फिर हम, क्योंकि इसको समझने के लिए, बोहर एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए, ये जो वेव वाली थ्योरीज थी, पार्टिकल वाली थ्योरी थी, ये सब बीच में पड़ी, तो इसको समझना जरूरी था। तो हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, तो हमने पहले वेव के बारे में समझ लिया। पहले तो सबसे पहले तो एटॉमिक मॉडल के बारे में समझा, फिर वेव के बारे में समझा, फिर उसके बाद अभी करेंटली हम क्या कर रहे थे, पार्टिकल नेचर समझ रहे थे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लास्ट टाइम हमने एटॉमिक मॉडल क्या शुरू किया, क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा था ये वाला, याद है क्या, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे, वापस आ गए हम एटॉमिक मॉडल पे, क्योंकि बोहर वाला बचा हुआ था। तो अब ये सारे रेडिएशंस और ये सारी बातें वेव नेचर पार्टिकल नेचर की हो चुकी है। तो आज शुरुआत करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, ठीक, वैसे तो मैक्सिमम चीजें हमने पढ़ी हैं कि वो सब, हाँ। चलिए बोहर की शुरुआत करेंगे अब हम। ठीक, नील बोहर नाम के साइंटिस्ट थे। अब जब ये सब पीछे, हमने क्या, डाल्टन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, जे जे थॉमसन पढ़ा, फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। तो ये जितनी चीजें हैं ना, इस सब चीज को नील बोर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे जब एटम के मॉडल पे बातें हो रही थी, है ना। भाई, जे थॉमसन आए तो अपना अलग थ्योरी दिए, उनका कुछ ड्रॉबैक, उनका कुछ फेलियर। फिर रदरफोर्ड आए, बोले ना ना ये गलत बताए हैं, फिर हमारी कुछ थ्योरी, और फिर उनका कंक्लूजन पढ़ा, फिर उनका ऑब्जर्वेशंस पढ़ा, फिर हमने फिर उनका भी ड्रॉबैक देखा कि भाई जब मैक्सवेल खड़ा हो गए तो वो भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और साथ ही साथ वो स्पेक्ट्रम वाला जो खेल था वो भी नहीं कर पाए एक्सप्लेन। तो बहुत इस सब चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे नील बोर। ठीक है, और फिर जब उनका एटॉमिक मॉडल आया ना, सो इस एटॉमिक मॉडल को बेसिकली, ये थोड़ा तगड़ा एटॉमिक मॉडल था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ बातें तो, इन्होंने भी देखो कंप्लीटली इन्होंने भी सही नहीं बताया था, बिल्कुल इन्होंने भी कंप्लीटली सही नहीं बताया, लेकिन इनकी जो कुछ बातें थी वो बहुत तगड़ी थी। और यहीं से शुरुआत हुई कि हम एटम के रेडियस, एटम की वेलोसिटी और एटम की एनर्जी के बारे में भी, और इवन एटम के टाइम पीरियड के बारे में भी बातें करेंगे, और देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे कि भाई वो सब कुछ जो था वो बोहर एटॉमिक मॉडल से कैसे रिलेट करता है, मैं कराऊंगा। मैं यहीं बैठा हूं तुम सबको एकदम मस्त तरीके से बताने के लिए कि रेडियस ऑफ एन एर्थ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ एन एर्थ ऑर्बिट, टाइम पीरियड और एनर्जी, ये सब बोहर एटॉमिक मॉडल की ही देन है। ठीक है, तो हम जब ये एटॉमिक मॉडल आया तो इनके एटॉमिक मॉडल बहुत सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और जब ये क्लोजली ऑब्जर्व किए सब सारी चीजें, तो क्या क्या इनके ऑब्जर्वेशंस थे, क्या 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 कंक्लूजन्स थे, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो और शुरुआत करते हैं। बोहर ने सबसे पहली बात तो अपने एटॉमिक मॉडल के लिए ये बोली कि भाई साहब, अगर मेरे एटॉमिक मॉडल को समझना है तो तुमको एक बात याद रखनी पड़ेगी, और वो क्या है, वो ये है कि जो नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था ना, क्या बोला मैंने, कि नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही वैलिड था। क्या बोला मैंने, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब इसका क्या मतलब है, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब ये है ना कि ऐसे एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अगर मैं बहुत बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, सबको पता है। इट मींस कि अगर इस चीज को ऐसे भी लिखें कि बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम पे या फिर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट पे ही काम करता है, तो भी ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, सही होगा। तो सबसे पहले चीज याद रख लो, बोहर एटॉमिक मॉडल किस पे काम करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, चलो
ये तो पहली बात उन्होंने बोली अपने एटॉमिक मॉडल के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने की बात है, ठीक है। और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड नहीं होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि लिथियम, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम के लिए आप कभी भी बोहर एटॉमिक मॉडल की जो भी पोस्टुलेट या फिर जो भी इनसे रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा जो आगे हम पढ़ेंगे वो नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि Li2+, तो बिल्कुल इस पे हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, Li2 के पास क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे और 2 पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस 2 निकाल दिए, तो बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। सो लिथियम पे नहीं वैलिड होगा, लेकिन लिथियम 2+ पे वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि लिथियम 2+ अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन चुका है। मतलब ऐसा भी होगा क्या? बिल्कुल होगा, समझे? जैसे अगर मैं बात करूं बेरिलियम, सो बेरिलियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। सो बेरिलियम पे ये मॉडल जो है वो वैलिड नहीं होगा। कौन सा मॉडल? नील बोर का मॉडल। लेकिन अगर मैं बात करूं Be3+, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, तो Be3+, तो इस पे वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या हो गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गया। सो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ हाइड्रोजन पे ही लगाएंगे, नहीं नहीं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो। क्लियर है? क्लियर है? बोलो। कौन है ये? नासिर भाई तुम ड्रॉपर हो। 3 पोस्टुलेट 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई सबको पढ़ने दो, ठीक है। चलो क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये था पहला पहला नोट करते चलना, ठीक, प्रॉपर नोट्स की तरह से बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था पहला स्टेटमेंट जो बोर टाइम मॉडल में अपने अपने लिए दिया, ठीक। अब इनके पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स वो होते हैं जो ये बोले और उस चीज को, उसका रिजल्ट जो है वो और अदर चीजों में यूज हुआ, है ना। तो पोस्टुलेट बेसिकली वो कंक्लूजन था, वही सिंपल भाषा में कहें तो कंक्लूजन, की क्या क्या कंक्लूजन मिले इनके एटॉमिक मॉडल के स्टडी करने के बाद, उन्होंने क्या क्या बातें बताई हमको, उसको पोस्टुलेट कहते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट, तो मैं लिखता हूं हेडिंग देके कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जब इनका एटॉमिक मॉडल आया तो इन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट दिए, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं और लिखते हैं इनका जो पहला पोस्टुलेट था। सबसे पहला और सिंपल सी बात, कुछ नहीं किए, जितना साइंटिस्ट पीछे बता के गए थे उसको उठा के अपने पहले पोस्टुलेट में चेप दिए। चेपने का मतलब ये है कि पहली पहली बात यही बोले जो जे थॉमसन बोले थे, क्या? कि पहला पोस्टुलेट में इन्होंने बात ये बोला कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। इट मींस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम्स के अंदर होते हैं। जब पहला पोस्टुलेट लोगों ने पढ़ा तो बोला ये कौन सा नया बात बता दिया भाई, ये तो जे थॉमसन बता के गए थे। तो उनका पहला पोस्टुलेट यही था। आओ लिख लो कि एटम इज न्यूट्रल, है ना। इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। चलो भाई, पहला पोस्टुलेट तो सबसे कॉमन जो सब बता के गए थे। देखो दूसरा पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट क्या बोला? जब दूसरा पोस्टुलेट तुम आधा पढ़ोगे ना तो ये भी कहोगे कि ये तो रदरफोर्ड ही बताए थे। उन्होंने दूसरा पोस्टुलेट ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में, जिसको कहते हैं ऑर्बिट या फिर शेल। लेकिन उन्होंने एक और बात उसमें जोड़ दी, उन्होंने बोला कि वो कांस्टेंट रेडियस का होता है। अब देखो क्या है, पहले पोस्टुलेट लिखवाता हूं फिर समझाता हूं, ठीक। उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, इसको ऐसे लिख लो, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in a circular path in a circular path of constant radius। ये शब्द समझना, called orbit या फिर shells। एस एच ई डबल एल, सी ई डबल एल वाला शेल नहीं, एस एच ई डबल एल, ठीक है। सो या तो उसको ऑर्बिट कहिए या फिर शेल कहिए। लेकिन उन्होंने देखो बहुत मस्त बात बोली, क्या? कांस्टेंट रेडियस। अब सवाल ये है
कि आपके मन में सवाल ये रहा होगा ना कि सर जब हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था तो आपने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब गोल गोल घूमेगा यानी सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो मैक्सवेल बीच में आए थे, बताए थे कि वो तो फिर एनर्जी लॉस करनी चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, अपनी रेडियस को कम करते करते गिर जाएगा और एटम जो है वो फिर खत्म हो जाना चाहिए, और इसी चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और बोहर का दूसरा पॉसिबिलिटी यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में विथ कांस्टेंट रेडियस, उस जिसको ऑर्बिट कहते हैं। अब ये कांस्टेंट रेडियस वाला फंडा समझो, उन्होंने बोला ना कि जो मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो नहीं लगेगी। कहने का मतलब, वो नहीं लगने का मतलब ये है कि मैक्सवेल साहब ने क्या बोला था कि अगर सेंटर पे न्यूक्लियस है और इस पे ये ऐसे कुछ क्या है, शेल्स हैं जिसमें इधर भी इलेक्ट्रॉन है इधर भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। सो उन्होंने क्या बोला था, है ना, मैक्सवेल क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन है भाई अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होगी तो ये ऐसा क्या होगा, अपने ऑर्बिट को छोटा करता 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 और इसमें धड़ाम से गिर जाएगा, और जैसे ही गिरेगा एटम खत्म। लेकिन बोहर ने साफ साफ मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी छोटा या बड़ा नहीं होगा, मतलब वो ना तो श्रिंक होगा और ना वो फैलेगा, उसका रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसका एनर्जी से लेना देना है ही नहीं। वो हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी बना दी गई है, तो एक फिक्स एनर्जी और फिक्स कांस्टेंट रेडियस पे ही वो क्या करेगा, रिवॉल्व करते जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है सो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपने रेडियस को छोटा करके और न्यूक्लियस के बीच गिर जाए, वो सिर्फ इसी पाथ पे रहेगा जो कि कांस्टेंट रेडियस का है और वो सिर्फ इसी पाथ पे घूमेगा। कहने का मतलब ये है। दूसरा पोस्टुलेट समझ आया, जल्दी बताओ। कि जो रेडियस होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब यहाँ मैक्सवेल का रूल जो है वो, उन्होंने क्या बोला कि मैक्सवेल का जो रूल है वो बेसिकली, अरे पोस्टुलेट का मतलब होता है कि उन्होंने जो बोला अपने एप्लीकेशंस को, जो बोली हुई चीजें हैं उसको यूज किया फर्दर, और कैसे यूज किया मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया होगा, अभी क्लियर हो गया होगा कि उसकी जो रेडियस है वो श्रिंक नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। ये दूसरा पोस्टुलेट था। ठीक है, थर्ड एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट वो क्या था, नोट कर लो। तीसरी चीज, बहुत मस्त बात बोली, और यही तीन पोस्टुलेट और जो आगे आने वाले हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ, उन्होंने क्या बोला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब देखो उन्होंने बता तो दिया कि जो सेंटर, जैसे मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ ड्रॉ कर दूं कि अगर ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और अगर मैं इसके आजू बाजू एक सर्कुलर ऑर्बिट ये बना दूं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब ये था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा दूं जो इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ये बताओ, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है तो सबको पता है कि सेंटर की तरफ क्या लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सर्कुलर मोशन पढ़े हो, अगर क्या पढ़े ही हो यार, तो सबको तो पता है, क्लास 9 में भी चीज पढ़ाई जाती है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाता है तो आपको ये चीज बताई जाती है, कोई भी चीज अगर गोल गोल घूमती है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, तो सबको पता है। तो तीसरा पोस्टुलेट बेसिकली यही था कि जो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल चक्कर लगा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसके सेंटर पे, बिल्कुल लग रहा है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है ना, इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुमको समझाऊं तो क्लास 12 में अगर ये चीज पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल ग्रेविटेशन फोर्स की तरह होता है, बस ग्रेविटेशन फोर्स मासेस के लिए लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो जाएगी तो वो दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो सेंटर पे क्योंकि क्या है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रहेगा, और इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है, तो क्या ये दोनों चार्ज के बीच जो सेंटर पे तरफ जो अट्रैक्शन लग रहा है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसी डायरेक्शन में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो बोहर ने तीसरे पोस्टुलेट में यही बोला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमने के लिए, उसको बैलेंस कौन करता है, उसको बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। बोलो तीसरा पोस्टुलेट लिखने से पहले समझ आया कि नहीं, बताओ। इज देयर एनी यूज ऑफ एनर्जी, ये नया है क्या मोहम्मद शामी? हम्म, तुम तो क्लास में आते हो। सेंट्रीफ्यूगल,
अरे सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से बाहर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, टुवर्ड सेंटर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ, दोनों नेचर के अपोजिट चार्जेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल नहीं सेंट्रीपिटल। समझ आ रहा है कि नहीं ये बताओ, जो थर्ड पोस्टुलेट था वो समझ आ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो बैलेंस आउट होगा, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। देखो, सेंटर पे लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब अगर तुम ढंग से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े हो तो तुम्हें ये चीज पढ़ी होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई चीज होता नहीं है। अरे यार देखो, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है ना, अब ध्यान से समझो, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है ना कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो बेसिकली उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है ये बताओ। उसका रीजन बेसिकली क्या है, दो चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन। अगर बैलेंस सबको तुम हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो इस चीज को समझो, अगर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसी बॉडी का वो बेसिकली अच्छा, अगर किसी ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ढंग से पढ़ा भी है या नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुमको साफ ये बात बताई जाती है कि कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है सेंट्रीपिटल की एम बी स्क्वायर अपन आर जो तुमने याद कर लिया है वही होगा। अरे यार, ग्रेविटेशन भी सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट करता है। अब जो हवा में जो तुम प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है, नहीं नहीं, तो बैलेंस की वजह से कंफ्यूज मत हो ना। बैलेंस का सिंपल कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कॉज है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो बेसिकली कहां से आता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आता है। ठीक है, हवा में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे के, तो प्लैनेट जब रिवॉल्व करते हैं तो वो उनके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉज क्या है, उनके उनके सेंट्रीपिटल का फोर्स है ग्रेविटेशन। वैसे ही यहाँ जो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जो यहाँ जो सेंट्रीपिटल का कॉज है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब किसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो रहा है, दो चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। उसी चीज को बस बोर ने अपने पोस्टुलेट में कवर अप किया, इस चीज को उन्होंने नोटिस किया और इसको पोस्टुलेट बनाया। तो पोस्टुलेट में क्या लिखेंगे, नोट कर लो कि द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is provided by electrostatic force of attraction। किसके किसके बीच, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है भाई, सबको पता है, सबने पढ़ रखा है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। सो किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो सबने पढ़ रखा है कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि एम बी स्क्वायर इज अपॉन आर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मैं थोड़े समय के लिए ये कह दूं कि Q1 और Q2 क्या है जरा मुझे बताओ। तो ये बताओ, क्या मैं न्यूक्लियस के चार्ज को जेड लिख सकता हूँ, अब ये मत पूछना कैसे, क्योंकि मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में भी ये चीज बता चुकी है, और हद, ये बहुत सिंपल सी चीज है और सबको पता भी होता है। जेड का मतलब ये है, सिंपली बता देता हूँ, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे पॉजिटिवली, तो जेड तुम्हारा न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा टोटल। और एक चार्ज क्या है, एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं Q1 को इलेक्ट्रॉन बोल दूं और Q2 को जेड बोल दूं, सो इसी चीज को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है, जल्दी बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, बस Q1 और Q2 की वैल्यू को पुट कर दिया उसके रिस्पेक्टिव जगह पे। क्लियर, क्लियर, जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर है। चलिए, सो ये था पोस्टुलेट नंबर 3। चौथा पोस्टुलेट क्या था, आओ नेक्स्ट पोस्टुलेट आगे बढ़ते हैं, आ जाओ।
चौथा, अच्छा इस चीज को समराइज करके अगर लिखना हो शॉर्ट में तो ये भी लिख देना कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइड में लिख लेना अगर लिखना होगा तो, ठीक है। चलिए, पोस्टुलेट नंबर 4। अब देखो, अब यहाँ पिक्चर में आता है, अब देखो, अब ये मोहम्मद शामी कुछ पूछे थे, है ना, मैं तुमको समझाता हूँ। मैंने क्यों तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया मोहम्मद शामी, कहाँ लिखे हैं आपने, यहाँ, कि आपने कुछ लिखा है, हाँ, देयर इज एनी यूज ऑफ एनर्जी टू रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन इन शेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चौथा नंबर पोस्टुलेट था ना, ये आप ही का इंतजार कर रहा था, और आइए मैं आपको समझाता हूँ कि अब एनर्जी और उसका यूज क्या है। देखो, बोहर ने ये तो बोला कि रेडियस जो है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बोहर ने ये भी साथ में बात बताई कि यार अगर मैं एक न्यूक्लियस की ऑर्बिट या फिर शेल की बात करूं तो वो तो इनफाइनाइट हो सकती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेंटर पे न्यूक्लियस है तो ये भी ऑर्बिट हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है। सो ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकती हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी रह सकता है, लेकिन बोहर ने इसी चीज को फिक्स किया। अब यहाँ पिक्चर में और एनर्जी वाला रोल आता है। बोहर ने अपने चौथे पोस्टुलेट में यही बात बोली कि पॉसिबल तो है कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकती हैं सर्कुलर, लेकिन 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 इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, और जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। इसीलिए जो मोहम्मद शामी पीछे पूछे थे ना कि सर क्या एनर्जी कोई रोल है, मैं वहां तुमको इस चीज को नहीं बताया था, क्योंकि पॉस्टुलेट, इसी में वो चीज तुम्हें बोलता है कि पॉस्टुलेट नंबर 4 का इंतजार करो। पॉस्टुलेट नंबर 4 यही बताता है कि हर ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करेगा, सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, और जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। क्या बोला है मैंने, समझाता हूं, इस चीज को हटा दिया जाए और क्वेश्चन नंबर 4 में इस चीज को लिख दिया जाए जो बोला गया है, फिर समझते हैं क्या है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, but electron will only revolve in those orbit which have the angular momentum is equals to, या फिर whose angular momentum लिख, चलो ठीक है, इस चीज को थोड़ा चेंज करके लिख लो, whose angular momentum, whose angular momentum is equals to the integral multiple of h upon 2 pi with fixed energy। ये था चौथा नंबर पोस्टुलेट, ये था चौथा नंबर पोस्टुलेट। कहने का मतलब ये क्या है कि ऐसे देखा जाए तो अगर मैं एक न्यूक्लियस को कंसीडर करूं तो एक न्यूक्लियस के आसपास ऐसे खूब सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। ये एक ऑर्बिट हो सकता है, ये भी एक ऑर्बिट हो सकता है, ये भी एक ऑर्बिट हो सकता है, ये भी एक ऑर्बिट हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आखिर किस ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा, उसके लिए कंडीशन बना दी बोर ने, और वो कंडीशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो ये चीज तो सबने पढ़ रखी है क्लास 12 में, क्लास 10 में, क्लास 11 में। तो एंगुलर मोमेंटम होती है एम वी आर, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना लिखा जाता है, एम वी आर। सो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्बिट को मैं कंसीडर करूं जिसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर हो, और वो अगर
NH/2 के बराबर हो, सो उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। यहां मैंने H/2 के साथ देखो n का मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है कि इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 या 5 टिल n हो सकती है। कभी फ्रैक्शन में या डेसिमल में रखने की गलती मत करना। इंटीग्रल मल्टीपल है वो, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे टिल n तक चलेगा वो। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर एम वी आर H/2 के बराबर हो, मतलब फॉर n इक्वल्स टू 1, एंगुलर मोमेंटम H/2 हो जाएगा। अगर मैं n इक्वल्स टू 2 की बात करूं तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2H/2। अगर n इक्वल्स टू 3 की बात करूं तो उसका एंगुलर मोमेंटम 3H/2, या फिर एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है, 4H/2। ये तो छिप गया पीछे, इधर नहीं लिखना चाहिए था, इधर से मिटाते हैं, यहां से मिटाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट प्लेस में लिखते हैं। मतलब सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 की बात करूं, n इक्वल्स टू 2 की बात करूं, n इक्वल्स टू 3 की बात करूं, n इक्वल्स टू 4 की बात करूं, टिल देन n तक चलेगा, n इक्वल्स टू n। तो m वी आर जो होगा वो H/2 हो जाएगा। फिर इसके लिए अगर मैं m वी आर लिखूंगा सो 2H/2 हो जाएगा। इसके लिए अगर मैं m वी आर लिखूंगा सो 3H/2 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 4, एम बी आर कितना हो जाएगा, 4H/2 हो जाएगा। सो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि या तो H/2 में रहेगा, या फिर अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो H/पाई में रहेगा, या फिर 3H/2 में रहेगा, या फिर 2H/पाई में रहेगा। सो बेसिकली यही वो कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन कोई भी सेल सेटिस्फाई कर रहा है, सो उसी सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, सारे सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या ये पोस्टुलेट क्लियर है, बताओ। ये बहुत टफ लगता है यार बच्चों को, मैं लिटरली मैं खुद फेस किया हूं, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से तुमको समझाया कि इंटीग्रल मल्टीपल एफ एच अपॉन 2 पाई। ये समझ नहीं आता है किसी को, ठीक है, मेरी बात मानो। अगर समझ आया है तो प्लीज बताओ समझ आ गया सर। बिल्कुल टफ नहीं लगा, हाँ बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, ढंग से पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यही बोर्स का कंडीशंस था। क्लियर, समझ आ गया। चलो, और पांचवा और सबसे लास्ट पोस्टुलेट, बस सिंपल है, ये तो अब कुछ है नहीं। मेन पोस्टुलेट दो ही तीन थे जो तुमको पता होने चाहिए थे। एक एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, दूसरा एम वी स्क्वायर अपन आर के जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि याद रखो ये दी मोस्ट है जिसमें मैंने हैशटैग लगा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम फिर आगे अभी जो बोर का ये बोला गया था, ठीक है, जितना समय बचता है उतने में ही जो बोर की बोली हुई जो पोस्टुलेट है इसका इस्तेमाल करके हम nth ऑर्बिट के लिए रेडियस डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे, और समझाऊंगा कैसे सवाल पूछे भी जाते हैं, बताऊंगा भी, ठीक है। सो यही था बोर का पोस्टुलेट। लास्ट पोस्टुलेट लिखते हैं। उन्होंने लास्ट पोस्टुलेट में एक ही बात बोली, बहुत सिंपल सी बात है। क्या है कि एनर्जी जो है वो शेल की रहेगी फिक्स, ना तो वो लूज करेगा ना तो वो गेन करेगा, ठीक है। और इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं, उन्होंने ऑर्बिट की एनर्जी को फिक्स कर दिया कि हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से मतलब नहीं है, हमको ऑर्बिट की एनर्जी से मतलब है। और जो ऑर्बिट की एनर्जी है वो स्टेशनरी है, वो फिक्स है। तो मैक्सवेल का जो रूल है कि एनर्जी लूज करेगा, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने बस ये पोस्टुलेट में अपनी लास्ट वर्ड बोल दी कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट neither loses energy neither gain energy, और these orbit are called stationary orbit, ठीक है। हालांकि ये बात इनकी सही नहीं निकली, क्यों, क्योंकि बाद में फिर हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करके अपने शेल को बदलता है, एक्साइटेड स्टेट जिसका इंट्रोडक्शन हुआ है ना। बट उनका पॉस्टुलेट का पार्ट है तो नोट डाउन कर लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग दी इन एन ऑर्बिट, इसको ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट neither gain or loses एनर्जी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है सिंपली कि जो ऑर्बिट की एनर्जी है वो ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, वो फिक्स रहेगी। ठीक है, इस थोड़े स्टेटमेंट को थोड़ा मैं गलत तरीके से तुमको लिखवा दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करनी चाहिए थी यहाँ। ठीक है, देखो इन्होंने बेसिकली जो बातें बोली थी वो बोली थी ऑर्बिट के लिए, तो उतना बड़ा ना लिख के तुम इसको सिंपल भाषा में ये समझ लो कि द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट आर फिक्स्ड, दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, मतलब बोर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी से मतलब है, और उसकी एनर्जी कभी बदलने वाली नहीं है, वो फिक्स है। ठीक है, और उस ऑर्बिट को क्या बोला जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट। सिंपल है, सिंपल है। क्योंकि फिर हम आगे अभी देखेंगे ना, जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, तो वो एनर्जी को गेन या लूज तो कर ही सकता है। तो वो चीज हम आगे पढ़ेंगे, जब स्पेक्ट्रम वाला पार्ट आएगा तो उस टाइम में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को गेन करता है और लूज करता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ बात हुई है ऑर्बिट की, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, ऑर्बिट की एनर्जी नहीं बदलेगी कभी भी। ठीक है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है और उनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। सिंपल, यस सिंपल, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर, सिंपल। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। सो ये पॉस्टुलेट्स थे बोहर के, ये पॉस्टुलेट थे बोहर के। अब ये जो पॉस्टुलेट थे ना, अब इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले, कुछ फॉर्मूले देखने को मिले, तो देख लेते हैं कि समय कितना है। ठीक है, चलो समय खैर है अभी 10 मिनट और चढ़ाते हैं क्लास को, और आइए आज इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो फार्मूले है बोहर से रिलेटेड वो क्या है। तो इसमें पहला, ये जो इनके पॉस्टुलेट थे, इन पॉस्टुलेट का यूज किया गया, और इन पॉस्टुलेट का यूज करके बोहर ने डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को डिफाइन की, जिसमें सबसे पहली चीज हमको पढ़नी है कि भाई अगर मेरे से कोई कह दे कि nth ऑर्बिट का रेडियस निकाल के बताओ, बोहर के लिए, बोहर यार, बोहर ने अपने क्या किया, और ऑर्बिट ऑर्बिट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उनके बारे में सारी प्रॉपर्टीज बताई। लेकिन अगर रेडियस कोई पूछ दे कि भाई रेडियस कितना है न्यूक्लियस है, डिस्टेंस कितना है उस ऑर्बिट का, उस सेल का, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इन्हीं के पोस्टुलेट से सब यूज हुआ और फिर हम रेडियस डिफाइन किए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सो उस ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, वो सब हम बोर के पोस्टुलेट के हेल्प से निकालेंगे। तो आज शुरू हो रहा है रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। वैसे अभी देखते हैं कल में, कल वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, फिर टाइम पीरियड को पढ़ाऊंगा, ऐसे एनर्जी पढ़ाऊंगा, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट कितना होगा, है ना, फिर टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट कितना होगा, सब पढ़ेंगे। आज देखते हैं रेडियस के बारे में। सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए कुछ फार्मूलेज दिए गए जो रिलेटेड हैं बोर एटॉमिक मॉडल से। बोर के पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके हम उस फार्मूले को निकालेंगे, और क्या याद रखना है मैं भी बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना याद रखना है ये भी समझाऊंगा। ठीक है, सब कुछ याद नहीं रखा जाता है, खैर आपका मन, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन कर सकते हैं तो याद रखिएगा। ठीक है, आइए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बोर ने कैसे डिफाइन किया वो समझते हैं। बार के पोस्टुलेट का इस्तेमाल करेंगे और एक हम रिजल्ट निकालेंगे एट द एंड, जो रेडियस का रिजल्ट देगा, मतलब एक फार्मूला बेसिकली जिसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको nth ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। अगर पहली ऑर्बिट निकालनी है तो आप n की जगह 1 पुट कर दीजिएगा, अगर दूसरी ऑर्बिट निकालनी है आप n की जगह 2 पुट कर दीजिएगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा रेडियस का। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो पॉर के दो पोस्टुलेट थे, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है, मैंने कहाँ गई, ये गई, यहाँ गई, एक सेकंड, हाँ। तो बॉर के दो पोस्टुलेट जो मैंने हैशटैग लगाया याद है, एक ये वाला सेंटीमीटर फोर्स वाला, और एक दूसरा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट है, जो h अपॉन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम। अब इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं कि फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल,
वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट क्या? पहला जो एम वी आर है वो एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, ठीक है। और दूसरा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसको काट छाट के सिंपली कैसे लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ एम बी इज इक्वल्स टू, ये एक आर से ये वाला एक आर काट दो, तो क्या लिख सकता हूँ? के जेड स्क्वायर अपन आर लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। सो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि हमको फाइनल में किसका एक्सप्रेशन चाहिए ये बताओ? क्योंकि हमको फाइनल में किसका एक्सप्रेशन चाहिए? फाइनल में एक्सप्रेशन चाहिए हमको रेडियस का। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं यहां से एम वी आर, जहां वी क्या होती है? वेलोसिटी, तो अगर मैं वी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूं किसमें? टू इक्वेशन नंबर 2, मतलब पहले इक्वेशन से पहले जरा v निकाल लो, v को अलग कर लो। तो अगर पहले इक्वेशन नंबर 1 की बात करता हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं v को अलग करता हूं तो m और r चले जाएंगे नीचे। सो मैं ये क्या लिख सकता हूं? एन एच अपॉन टू पाई एम आर लिख सकता हूं। बिल्कुल, पहले पहले इक्वेशन ये था एम बी आर, इसमें से जरा v को अलग निकाल लो सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एच अपॉन एम आर, क्यों? क्योंकि m और r नीचे चले जाएंगे, ठीक है सर। अब इस v को उठाओ और पुट कर दो किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। मतलब जहां भी है उसकी जगह क्या पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 2 के टू क्या इस वैल्यू को पुट कर दो, एम बी स्क्वायर अपन आर इंटू के जेड स्क्वायर अपन आर वाले टर्म में इस वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। सो एम बी, और नीचे आर था तो आर से आर कट चुका है, और नीचे बचा क्या है? के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इस भी की जगह इस वैल्यू को पुट कर दो, सो ये कितना कितना हो जाएगा? एन एच अपॉन टू पाई एम आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब काटो छाटो इस चीज को, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 4 पाई, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, एक सेकेंड, 4 पाई स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर, है ना। अब जरा काटो छाटो देखो। अब इस चीज में एक आर से ये वाला आर कट गया, तो नीचे सिर्फ एक आर बच गया, बच गया। सो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, क्या था? एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या बचा है? 4 पाई स्क्वायर, और क्या बचा है? एम स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर। अब क्योंकि हमको सिर्फ आर चाहिए तो इस पूरे टर्म को जरा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या हो जाएगा? एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन इस पूरे टर्म को उधर भेज दो, के जेड स्क्वायर को नीचे भेज दो, के जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर। अब सिर्फ आर चाहिए रेडियस के लिए, तो और जो बचा टर्म है उसको नीचे भेज दो मल्टीप्लीकेशन के लिए। सो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब एक एम से ये एम कट जाएगा, यानी आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर के जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। क्लियर? क्लियर? ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। थक गया यार मैं डिराइव करते करते। हाँ ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, जो कि है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रेडियस ऑफ एक्सप्रेशन। अब दिमाग में तुम्हारे ये आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद रखेंगे क्या? एग्जाम में तो हालत खराब हो जाएगी। इतना बड़ा फॉर्मूला एन स्क्वायर अपन एच स्क्वायर के जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। देखो, याद रखना है रखो, नहीं रखना है कोई बात नहीं। क्या बोला मैंने? याद रखना है रखो, नहीं रखना है कोई बात नहीं। इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट मैं तुमको देता हूं, जो कि रेडियस में आपको अगर याद रखना है, फॉर्मूले के लिए याद रख सकते हैं। अगर इस रिजल्ट को याद रख लेते हो, वैसे तो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, इधर उधर टर्म को उल्टा पुल्टा करके काट पिट करके एंड रिजल्ट ला देना है। लेकिन अगर याद नहीं रहता है तो एक शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट फार्मूला ले लो। ट्रिक नहीं है, फार्मूला, ये सब पढ़ते हैं, ट्रिक नहीं कहूंगा इनको मैं, ठीक है। अब देखो, इस चीज में सबसे पहली चीज क्या है भाई, जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें कांस्टेंट हमको पहले जरा अलग छांट लो। तो कांस्टेंट क्या क्या है ये बताओ। एच तो प्लैंक कांस्टेंट है,
तो ये कांस्टेंट है, एच को निकालो बाहर। एन क्या है? एन एन होता है शेल नंबर, मतलब जिस ऑर्बिट में है, जिस सेल में है, ऑर्बिट नंबर कह लो या शेल नंबर कह लो। अब ये जो n है ये तो वेरिएबल हो सकता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रहेगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में रहेगा तो सेल नंबर 2 हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में रहेगा तो सेल नंबर 3 हो जाएगा। तो n कांस्टेंट नहीं है, n क्या है? वेरिएबल है। तो पहले जितने कांस्टेंट वैल्यू है ना उसको अलग कर लो। ऊपर देखो तो एच स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। नीचे क्या फिक्स रहेगा? के भी ये कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। लेकिन z क्या है? z होता है एटॉमिक नंबर। सो यार डिफरेंट एलिमेंट के लिए z भी अलग अलग होगा, मतलब सिर्फ दो ही चीज जो है वो क्या है? कांस्टेंट नहीं है, वो है अलग, मैं उसको कर देता हूं, वो है एन स्क्वायर अपॉन जेड। बाकी सब कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है भाई? के कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और एम कांस्टेंट है। सो ये एक्सप्रेशन में कांस्टेंट को मैंने अलग कर दिया और वेरिएबल को मैंने अलग कर दिया। वेरिएबल क्या है? n है, l क्या है? शेल नंबर। तो ये बदलेगा क्योंकि हर, अरे यार कौन से सेल में ये थोड़े पता है, हमने nth सेल की निकाला है, तो सेल की वैल्यू तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो फिक्स तो नहीं है, वेरिएबल है। सिमिलरली z क्या है? z होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर भी अब जरूरी थोड़े है, अब ये फार्मूला हम हीलियम के लिए लगाए, ये फार्मूला हम सोडियम के लिए लगा सकते हैं, ये फार्मूला हाइड्रोजन के लिए लगा सकते हैं। कहने का मतलब है बस, क्योंकि बोर का रिजल्ट है इसलिए हम सिंगल एटम के लगाएंगे, बट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि जेड भी अलग अलग हो सकता है ना डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए, तो जेड भी बदल सकता है। इट मींस एन स्क्वायर बाई जेड जो है वो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एच क्या है भैया? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स है। सिमिलरली के, अरे यार कूलम कांस्टेंट ये भी तो फिक्स होता है, पढ़े हो कूलम कांस्टेंट? हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी फिक्स होता है। चलिए भाई, ई क्या है? अरे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे ये भी तो फिक्स होता है। और 4 पाई, अरे तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, पाई की वैल्यू फिक्स, 4 भी है कांस्टेंट। और m, अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया यहाँ, m क्या है? मास है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स, मतलब ये सब फिक्स है। और जब मैंने इस पूरे कांस्टेंट में इस सब की वैल्यू डाल दी, मतलब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी जो होती है 6.6 × 10⁻34, कूलम्ब कांस्टेंट क्या होता है? 1.45 एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, क्या 9 × 10⁻9, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1/10⁻19। फिर 4 पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9 × 10⁻31 kg। तो ये सब जब मैं डाल दूंगा इसके अंदर, तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जो आता है फाइनल रिजल्ट। क्या है? आओ नोट करते हैं। फाइनल रिजल्ट जो आपको याद रखना है, जब पूरी कांस्टेंट की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर देंगे, तो जो रिजल्ट रेडियस का हमको मिलता है, वो जो हमको याद रखना है, कहाँ गया ये रहा, वो ये मिलता है। क्या? r इज इक्वल्स टू 0.59 n स्क्वायर बाई जेड। यही है रिजल्ट जो आपको याद रखना, यही है डायरेक्ट फार्मूला जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेडियस निकालने के लिए यूज करना है। मतलब इस पूरे जगह मैं 0.59 से रिप्लेस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब सबकी वैल्यू में पुट करूंगा तो एंड में रिजल्ट आएगा 0.59। और याद रखना ये हमेशा एंगस्ट्रॉम में मेजर होता है रेडियस, क्योंकि बहुत छोटा होता है एक एटम का रेडियस, समझ रहे हो? तो एंगस्ट्रॉम एक बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। बताओ क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। मदर फार्मूला आना भी जरूरी होता है, तभी फाइनल समझ आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने समझाया, वरना मैं डायरेक्ट लिखता तो कोई मतलब नहीं है। सर आपने डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं लिखाया? अरे नहीं, मैं किसी भी चीज मैं टारने वाला इंसान नहीं हूं, समझे? मैं कॉन्सेप्ट को टारने वाला इंसान नहीं हूं। कॉन्सेप्ट का तुम्हारा ओरिजिन कहाँ से है वो नहीं जानोगे ना, मजा नहीं आएगा। क्या मजा आता फिर? डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख दूं 0.59 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड, कोई मतलब रहता? कोई मतलब नहीं रहता और मजा भी नहीं आता, और ना ही कोई समझ, कोई रीजन भी नहीं रहता ना उसके पीछे का। मैं तुमको कहां से लेके आया? मैं तुमको बोहर से लेके आया, बोहर के पोस्टुलेट से लाके डिराइव कराया हूं, समझ रहे हो? तो रिलेट तो होना चाहिए ना भाई कि बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं और उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी है जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होती है, समझ रहे हो? सो तो जो कहां से डिराइव हुआ वो आना जरूरी है। तो डायरेक्ट फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया जो कि सिंपल है, जो कि सब रट भी लेते हैं। और तुम डायरेक्ट फार्मूले की बात कर रहे हो ना जेई में, हाँ, जेई में मेन या एडवांस की बात करता हूँ ना, तुमको भनक नहीं लगेगी ना जेई में मेन या एडवांस में इसी से चीज पूछता है। कहता है ना
कि एक इलेक्ट्रॉन का मास पहले m था, बाद में मास को 4m कर दिया, तो उसके रेडियस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। किसी किसी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी, आगे पढ़ाऊंगा वेलोसिटी वाला टर्म, तो उसमें भी ये पूरा तुमको डिराइव कराऊंगा, फिर एक एंड रिजल्ट दूंगा। तो पूछा था ना कि वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसकी अगर उसके मास को 4 गुना कर दिया तो उसकी वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। सो ये बताओ, जब तक तुम इस रिलेशन से नहीं देखोगे कि जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तुम कभी इस चीज को सॉल्व कर पाते। जी मेन एडवांस में इसी चीज की टेस्टिंग करता है। ठीक है। तो सिर्फ पढ़ लेने से एग्जाम नहीं निकलता है, उसको सही तरीके से पढ़ना पड़ता है, हर एक चीज ध्यान देना पड़ता है। तो ये फार्मूला अगर याद रखोगे तो सवाल सॉल्व होगा। ठीक है। चलो यार, बहुत अच्छी बात है, मजा आया तो। ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव किया। सिमिलरली बहुत अभी आगे और भी कुछ बचा हुआ है, बहुत मजे से करेंगे। ठीक है। बहुत ढंग तरीके से सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल।